امریکی صدر جو بائیڈن جمعے کے روز فلسطین کے تاریخی شہر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت لحم پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے امریکی صدر نے کہا کہ دو ریاستی حل کے ہدف کے امریکی عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ دونوں فریقین فلسطین اور اسرائیل کو ایک ساتھ لانے کی کوششوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ بائیڈن نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی کے لیے $201 ملین کا اعلان کیا، اور اس موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی قونصل خانہ دوبارہ کھولنے، PLO کو دہشت گردوں کی فہرست سے ہٹانے اور واشنگٹن میں فلسطینی دفتر کو دوبارہ کھولنے کے لیے امریکی اقدامات کے منتظر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحافی شرین ابو عاقلہ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے امریکی حمایت چاہتے ہیں۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ صحافی شرین ابو عاقلہ کے قتل کے مکمل احتساب پر اصرار جاری رکھیں گے۔ Proud to be with you today as President of the United States, and we can count ourselves among the earliest supporters of a two-state solution. As I stand with you today, now as President of the United States, my commitment to that goal of a two-state solution has not changed in all these years. Two states along the 1967 lines were mutually agreed to swaps remain the best way to achieve equal measure of security, prosperity, freedom, and democracy for the Palestinians as well as Israelis. The Palestinian people deserve a state of their own that's independent, sovereign, viable, and contiguous. Two states for two peoples, both of whom have deep and ancient roots in this land, living side by side in peace and security. والتزمنا بنبذ الإرهاب والعنف ومحاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم. إننا نتطلع لخطوات من جانب الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب. إننا ومحاسبة قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة. يجب محاسبة هؤلاء الذين قتلوها، لأن استمرار ذلك سيؤدي إلى التصعيد من ناحية وفقدان الأمل في غد أفضل من ناحية أخرى. مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں جمعے کو درجنوں فلسطینیوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے کے خلاف احتجاج کیا۔ بیت المقدس میں مظاہرین نے بینر اٹھائے رکھے تھے جن پر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاری کی سرگرمیوں کی مذمت کی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین نے فلسطینی نژاد امریکی صحافی شرین ابو عاقلہ کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کیا، جو مئی میں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران ماری گئی تھی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم رانل وکرما سنگھے جمعے سے ملک کی صدارت سنبھال رہے ہیں اور اس وقت تک عبوری صدر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہیں گے جب تک پارلیمان مستعفی صدر گوٹابایا راجاپاکسے کی جگہ نئے صدر کا انتخاب نہیں کر لیتی۔ ڈیلی مرر نے وزیر اعظم کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بتایا کہ وکرما سنگھے نے چیف جسٹس جینت جے سوریا کے سامنے عبوری صدر کے طور پر حلف لیا۔ سری لنکا کی معیشت کے دیوالیہ ہونے پر ملک میں شروع ہونے والے احتجاج کے بعد سابق صدر گوٹابایا راجاپاکسے نے جمعے کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ صدر کے استعفے کے بعد مظاہرین نے دارالحکومت کولمبو میں بیشتر سرکاری عمارتوں کا قبضہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ پارلیمان جلد ہی نئے قائدین ایوان کا انتخاب کر لے گا۔ ان کے بقول ممکنہ طور پر آئندہ ایک ہفتے میں ملک کے نئے صدر کا انتخاب ہو جائے گا۔ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් එවන ලද ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මා වෙත ලැබී ඇත. ඒ අනුව 2022 ජූලි මාස 14 වන දින සිට ජනාධිපතිවරයා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා නීත්‍යානුකූලව ඉවත් වී ඇත. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ගෞරවනීය හා ආදරණීය මහජනතාවගේ
ගෙන් ඉල්ලා සිටිනුයේ නිසි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් හට නිදහසේ තම හෘද සාක්ෂියට එකඟව කටයුතු කිරීමට හා රැස්වීම සඳහා සහභාගී වීමට සුදුසු සාමකාමී වාතාවරණයක් उदा कर देने लेसाई। कोलंबो में श्रीलंका के सदारती दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन ने जुम्मा राजापाक्से के इस्तीफे का जश्न मनाया। इस्तीफे की खबर की तस्दीक के बाद मुजाहिरीन ने गाने गाए, जबकि कई ने बाकायदा रक्स भी किया। इस मौके पर एहतजाजी रहनुमा जोयंथा पेरिस ने मुजाहिरीन की इज्तिमाई कोशिश की तारीफ भी की। Something amazing, the fact that it happened on the back of largely peaceful protest that just happened not in Colombo but across the country, and so in that sense this is really an amazing moment, and it's not something that we could think, but obviously this is just the beginning, that there is a longer journey in terms of the kind of work that has to be done, not just to rebuild the economy but to create public confidence in this political system. We are happy as a collective effort because the citizen struggle of Sri Lanka was participated by all the citizens of Sri Lanka. Therefore, even diaspora of Sri Lanka, all walks of people. Therefore, we are happy because we श्रीलंका हालिया चंद माह से शदीद तरीन सियासी और माशी बहरान का शिकार है। सदर गोटाबाया राजापाक्से अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। इसके बाद सदारती जिम्मेदारियां अबूरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने संभाल ली। ताहम गोटाबाया राजापाक्से का मुल्क से फरार राजापाक्से ख़ानदान की श्रीलंका की सियासत में गुज़िश्ता 30 बरस से जारी बरतरी का खात्मा भी है। देखिए रिपोर्ट। कई माह से सुर्खियों में बने श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्षे ने आखिरकार जुमेरात को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा हुक्काम को सौंप दिया। श्रीलंका भर में कई हफ्तों से मुजाहरा कर रहे मुजाहिरीन ने पक्षे से इस्तीफे की मांग की थी। यही वजह थी कि मुल्क को माशी तबाही के दहाने पर धकेलने के बाद अवामी नाराजगी का सामना कर रहे राजापक्षे मुल्क से फरार हो गए थे। पहले वो मालदीव पहुंचे और इसके बाद उन्होंने सिंगापुर में पनाह ली और वादे के मुताबिक सिंगापुर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल किया। गोटाबाया का मुल्क से फरार राजापक्षे खानदान की श्रीलंका की सियासत में गुज़िश्ता 30 बरस से जारी बरतरी का खात्मा भी है। बहरहाल श्रीलंका की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजापक्षे के जाने के बाद मुल्क की कमान किसके हाथ में होगी और जो गैर यकीनी हालात बने हैं इसका क्या हल निकलेगा, ये वो सवालात हैं जिनका कोई हल नजर नहीं आता। ये भी सच है कि गोटाबाया ने जाते जाते अपने वज़ीर-ए-आज़म को कायम मकाम सदर बनाकर अवाम को मजीद मुश्तइल कर दिया। मुजाहिरीन की दायरीना मांग रही है कि दोनों अफराद अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं और इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए कुल जमाती हुकूमत तश्कील दी जाए, ताकि खुराक, ईंधन और दीगर ज़रूरियात के लिए फौरी इक़दाम किए जा सके। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि राजापक्षे और इनके ताकतवर सियासी खानदान ने बरसों से सरकारी खजानों को लूटा है। इनका मानना है कि इनकी इंतजामिया की नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से श्रीलंका आज माशी तौर पर कंगाल हो चुका है। हालांकि पक्षे खानदान ने बदउनवानी के इल्जामात की तरदीद की है, लेकिन राजापक्षे ने तस्लीम किया कि उनकी कुछ पॉलिसियों ने मुल्क को माशी तौर पर मुतासिर किया है। माहिरीन का मानना है कि इक़्तिदार पर एक खानदान के बेइंतहा तसल्लुत और सियासी उफ़क़ पर इजारादारी की वजह से कई नाआक़िबत अंदेश और गलत फैसले किए गए। 2019 में राजापक्षे ने टैक्सों में बड़ी कमी का ऐलान किया, जिससे हुकूमती मालियात को बड़ा नुकसान हुआ। गुज़िश्ता बरस हुकूमत ने तमाम कीमियाई खादों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे खुराक की मकामी सनत को शदीद धचका पहुंचा। हालांकि 6 माह बाद हुक्काम ने यह पाबंदी हटा दी, लेकिन इस फैसले ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजा मुल्क में ज़राई अजनास की किल्लत की सूरत में निकला। एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर गोटाबाया की जारहाना मुहिम ने मुल्क की 26 साल खाना जंगी को खत्म करने में मदद की थी। गोटाबाया राजापक्षे और इनके भाई जो उस वक्त सदर थे, दोनों को जजीरे की बोधमद सिन्हालेसे की अक्सरियत ने सराहा था। खाना जंगी के वक्त तमिल शहरियों पर फौजी हमलों का हुक्म देना और सहाफियों को अगवा करना जैसे वार क्राइम के इल्जामात के बावजूद राजापक्षे श्रीलंका के लोगों में मकबूल रहे। बहरकैफ
बुनियादी जरूरियात की किल्लत ने श्रीलंका की 22 करोड़ आबादी में मायूसी का बीज बो दिया है। मुल्क में तेजी से माशी गिरावट सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी, क्योंकि हालिया बहरान से पहले श्रीलंका में मईशत सुधर रही थी और मुतवस्सित तबका एक तरह से खुशहाली की राह पर गामजन था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुल्क के शुमाल मगरबी इलाके सुक्योंग का दौरा किया है, जो इस खित्ते में क्रैकडाउन के बाद उनका पहला दौरा है। सुक्योंग में बड़ी तादाद में तुर्कुल नस्ल युगोर मुस्लिम आबाद हैं। बीजिंग पर इस खित्ते में लाखों युगोर और दीगर मुस्लिम अक़लियतों को हिरासती मराकज़ में रखने का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक के कानून साज सुक्योंग में चीन के इक़दामात को नस्ल कुशी करार देते हैं और इस पर मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कई किस्म की पाबंदियां भी आयद की गई है। अलबत्ता बीजिंग इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। AFP के मुताबिक चीनी सदर ने दौरे के दौरान अपनी पॉलिसियों के नतीजे में होने वाली पेशरफ्त को सराहा। सरकारी मीडिया फुटेज में जिनपिंग को तलबा से बात करते हुए गाना और रक्स परफॉर्मेंस में शामिल होते हुए दिखाया गया है। वहीं अमरीकी सदर जो बाइडन मशरक़ी वस्ता के एशियाई ममालिक के दौरे पर हैं, लेकिन बाइडन के इस दौरे का असर चीन में भी देखा जा रहा है। अमरीकी सदर के इस दौरे पर चीनी मीडिया ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चीनी मीडिया ने बाइडन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो चीन, ईरान और रूस जैसे ममालिक को घेरने के लिए नेटो का मशरक़ी वस्ता वर्जन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। चीन के सरकारी CCTV ने 9 जुलाई को वॉशिंगटन पोस्ट में बाइडन के एक मजमून का हवाला दिया, जो उन्होंने मशरक़ी वस्ता के एशियाई दौरे से ठीक पहले लिखा था। इस मजमून में बाइडन ने अपने दौरे को अमरीकी सलामती और चीन को चैलेंज करने के लिए अहम करार दिया। CCTV ने चीन मुखालिफ मौक़िफ़ को फरोग देने पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की। बरतानिया के साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक को मुल्क के आइंदा वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी में आइंदा वजीर आजम के लिए उम्मीदवारों में उनको बढ़तरी हासिल है। बरतानिया की पार्लियामान में कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़तरी हासिल है, इसलिए इस पार्टी का सरबरा आइंदा का वजीर आजम होगा। इब्तदाई मरहले में कंजर्वेटिव पार्टी अपने सरबरा का इंतखाब कर रही है, जो आगे चलकर वजारत उज़्मा का मनसब संभालेगा। देखिए रिपोर्ट। बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की दौड़ बेहद दिलचस्प होती जा रही है। हिंदुस्तानी नजाद ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर की दौड़ में एक और कदम बढ़ा दिया है। जुमेरात को होने वाली वोटिंग के दूसरे मरहले में भी ऋषि सुनक ने कामयाबी हासिल की है। इसके साथ अब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की दौड़ में सिर्फ 5 चेहरे रह गए हैं। वहीं हिंदुस्तानी नजाद स्वेला ब्रेवमैन इस दौड़ से बाहर हो गई है। हालांकि ऋषि सुनक के लिए वज़ारत उज़्मा की ये राह आसान नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 दिनों में उनके लिए मजीद 3 इम्तिहानात बाकी है। बरतानिया की पार्लियामान में कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़तरी हासिल है, इसलिए इस पार्टी का सरबरा आइंदा का वजीर आजम होगा। इब्तदाई मरहले में कंजर्वेटिव पार्टी अपने सरबरा का इंतखाब कर रही है, जो आगे चलकर वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालेगा। दूसरे दौर की वोटिंग में क्या हुआ? हिंदुस्तानी नजाद स्वेला ब्रेवमैन को इस दौड़ में सबसे कम वोट मिले और वो इस राउंड से बाहर हो गयी। सबसे ज्यादा वोट ऋषि सुनक को मिले हैं। सुनक को 101 वोट मिले हैं। वजीर बराए तिजारत 49 साला पेनी मोर्डन दूसरे नंबर पर रहीं, उन्हें 83 वोट मिले। काबीना में वजीर खारजा के तौर पर शामिल लिस्टर्स को 64 वोट हासिल हुए। हिमी बैदोनोक चौथे नंबर पर रहीं, उन्हें 49 वोट मिले हैं। टॉम टू गेंडहार्ट को रायशुमारी में 32 वोट मिले, वो दूसरे मरहले में 5वें मुकाम पर रहे। बरतानिया की हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्टी लीडर के इंतखाब के लिए वोट दे रहे हैं। अब तक वोटिंग के 2 राउंड हो चुके हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के 358 अरकान पार्लियामेंट है, जो अगले दौर के लिए वोट देंगे। ये वोटिंग उस वक्त तक होगी जब तक क़यादत के लिए 2 उम्मीदवार बाकी नहीं रह जाते। अब अगले मराहिल के लिए वोटिंग होगी। अरकान बाकी उम्मीदवारों को वोट देंगे। आइंदा मरहलों की वोटिंग पीर, मंगल और बुध को होगी, यानी अगले 5 दिनों में 3 बार वोटिंग होगी। हर बार सबसे कम वोट लेने वाला उम्मीदवार बाहर हो जाएगा। तवक्को है कि ये अमल 21 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। ग्राफिक्स आउट।
जब कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार रह जाएंगे तो वो मुल्क भर में जाकर पार्टी के अरकान से वोट मांगेंगे। दरअसल टूरी पार्टी हुक्मरान जमात है, इसलिए दोनों उम्मीदवारों में जो भी पार्टी का सरबराह बनेगा वो मुल्क का वजीर आजम होगा और बोरिस जॉनसन की जगह लेगा। 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा और बरतानिया के वजीर आजम का ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के मुल्क भर में 2 लाख कारकुन हैं। एक उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए 3 लाख पाउंड खर्च कर सकता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान कई इवेंट होंगे। ऋषि सुनक जहां 2 मरहलों की वोटिंग के बाद आगे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामेंट उन्हें सबसे ज्यादा वोट कर रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि उन्हें पेनी मोर्डन से सख्त चैलेंज मिल सकता है। दरहकीकत कई सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान ने उन्हें अपनी पहली पसंद करार दिया है। सट्टेबाजों की नजर में भी पेनी मोर्डन सबसे आगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लद्दाख में दलाई लामा का वालहाना इस्तकबाल किया गया। अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में खैर मकदम के लिए जमा थे। हजारों मकामी और गैर मकामी लोग हाथों में खटक लेकर 11 किलोमीटर तक ठहरे हुए थे। कोविड के बाद पहली बार दलाई लामा धर्मशाला से बाहर निकले हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थक्से रिनपोचे की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर वो यहाँ आए हैं। KBR एयरपोर्ट से जयोत्सल फुतांग शे तक अक़ीदतमंद तक़द्दुस और एहतराम के लिए दलाई लामा की दुआ लेने खड़े रहे। तकरीबन 1 महीने के विजिट के लिए, स्टे के लिए लद्दाख तशरीफ लाए जम्मू से। तो उस मौके पर जैसे दिल खोल के लद्दाख के जितने भी निवासी हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। उसको देखते हुए हिज होलीनेस को बहुत, उन्होंने खुद कहा कि आई एम टच्ड बाय दिस शो ऑफ दिस सबसे डिवोशन। तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि उनके स्टे के दौरान, हालांकि उन्होंने ये फरमाया कि उनका स्टे तकरीबन महीने के लिए है। तो हालात को देखते हुए और उनकी सेहत को देखते हुए, क्योंकि उनको थोड़ी सी घुटने में तकलीफ है और कुछ और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा अगर सब कुछ साजगार रहा तो स्टे एक्सटेंड भी हो सकता है। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि वस्ती शहर वेनेट्सिया पर रूसी मिसाइल हमले में महलूकीन की तादाद बढ़कर 23 हो गई है, जबकि 39 यूक्रेनी शहरी अभी भी लापता है। इस हमले में महलूकीन में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी मिसाइल हमले की मजम्मत की है। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को शहरी आबादी वाले इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने लास और ड्रेसन में मेडिकल सेंटर पर मिसाइल हमला किया तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? Я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам, демократичному світу. Цей день вкотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя. यूक्रेनी शहर माइकोलीव पर रूसी अफवाज ने मिसाइल दागे हैं, जिसमें शहर की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फौजी इंतजामिया के सरबराह की तरफ से पोस्ट की गई फुटेज में एक इमारत से शदीद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इलाकाई गवर्नर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि कम से कम 10 रूसी मिसाइल के जरिए शहर की 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया गया है। हलाकतों की तादाद के बारे में कोई इतला नहीं दी गई। एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त तकरीबन 2.25 करोड़ टन अनाज रुका हुआ है, जिसके सबब बहुत से तरक्की पजीर ममालिक को खुराक की फराहमी खतरे में पड़ जा रही है और इसकी वजह से आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा भी हुआ है। अब इस मामले में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। रूस, तुर्की, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा के वफूद ने इस मसले पर मुलाकात की। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
यूक्रेन में इस वक्त तकरीबन 2.25 करोड़ टन अनाज फंसा पड़ा है, जिसके बाद तरक्की पजीर ममालिक के लिए खुराक की सप्लाई खतरे में पड़ती जा रही है और इसकी वजह से आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और अब इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि इसका कोई ऐसा हल तलाश किया जाए जिसकी मदद से वक्त पर आइंदा फसल के लिए गोदाम खाली किए जा सकें। अब रूस, तुर्की, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा के वफूद ने इस मसले पर आमने सामने बातचीत के लिए मुलाकात की थी। इस मीटिंग का मुस्बत नतीजा सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि वो इस बात के लिए पुरउम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात का बहर असवद के रास्ते से अनाज की बरामदात की आजादाना तरसील के लिए बाज़ाब्ता मुआहिदे पर पहुंच सकते हैं। Today in Istanbul, we have seen a critical step forward to ensuring the safe and secure export of Ukrainian food products through the Black Sea. In a world darkened by global crisis, today at last we have a ray of hope. A ray of hope to ease human suffering and alleviate hunger around the world. A ray of hope to support developing countries and the most vulnerable people. A ray of hope to bring a measure of much needed stability to the global food system. Since the war started, I have been underlining the importance of having Ukraine's food products and Russian food and fertilizers fully available in world markets. I traveled to Moscow and Kyiv to propose solutions for both problems. Every day since, we have been working around the clock with intense behind-the-scenes talks with countless moving parts. More technical work will now be needed to materialize today's progress, but the momentum is clear. In the end, the aim of all parties is not just an agreement between the Russian Federation and Ukraine, but an agreement for the world. अक़वाम मुत्तहिदा का मानना है कि यूक्रेन जंग की वजह से लाखों टन फंसे अनाज को आलमी मंडियों तक भेजने की जरूरत है। इसी तरह रूस को भी अनाज और खाद भेजने की इजाजत होनी चाहिए। मुज़ाकरात की मेजबानी करने वाले तुर्क वजीर दिफा ने कहा कि फरीकैन ने बहर असवद के उस पार अनाज मुंतकिल करने वाले रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तौर तरीकों पर इत्तेफाक किया है। Bunlar arasında İstanbul'da müşterek bir koordinasyon merkezinin kurulması, limanlardan çıkış ve varışlarda müştereken bir takım kontrollerin yapılması ve ayrıca gemilerin, buradaki tahıl ve diğer gıdalar taşıyacak olan gemilerin seyir rotalarının emniyetinin sağlanması dahil birçok teknik ve यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की कोशिशों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुआहिदा तय पाने के बाद खुराक के आलमी बहरान की शिद्दत में कमी आएगी। В новинах багато згадок про зустріч в Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми дійсно докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. Я вдячний Організації Об'єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а без перебільшення усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству у Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН. इससे कबल कीव ने रूस पर यूक्रेनी अनाज को ब्लॉक करने और चोरी करने का इल्जाम आयद किया। तहम रूस ने इसकी सख्ती से तरदीद की और कहा कि कीव अपनी बंदरगाहों से अनाज भेजने के लिए आजाद है। एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त तकरीबन 2.25 करोड़ टन अनाज रुका हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर इदारे का कहना है कि यूक्रेन जंग के सबब बहुत से तरक्की पजीर ममालिक को खुराक की फराहमी खतरे में पड़ती जा रही है और इसकी वजह से आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 18 करोड़ से ज्यादा आबादी पहले ही फाका कशी का सामना कर रही थी। ये बहरान इस सूरत हाल को मजीद खराब कर सकता है। यूक्रेन और रूस ने बहर असवद के आसपास सैकड़ों बारूदी सुरंगें नस्ब कर रखी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तजवीज़ पेश की है कि बारूदी सुरंगों के मकामात से गुरेज करते हुए महफूज राहदारियों के जरिए अनाज की तरसील की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
सिर्फ जीवनसाथी.com पर ही